It's great to see you all here for a very special Kitab book launch organized by the Prabha Khetan Foundation. It is indeed a unique event because the foundation has planned the book release ceremony under two initiatives, Kitab and Sur Aur Saaz. It is a landmark combination of literary and musical initiatives. It connects the world of literature and cultural heritage. I, Archana Dalmia, Ehsaas Woman of Delhi, welcomes you to a yet another extraordinary book launch organized by the Prabha Khetan Foundation, a non-profit trust based out of Kolkata. The foundation is happy to release Mera Naam Gauhar Jaan, which is the Hindi translation of Dr. Vikram Sampat's book titled My Name is Gauhar Jaan, in the presence of distinguished personalities. Dr. Sonal Mansingh, we are still awaiting her. So we'll do the book launch after the introduction and we can start the panel discussion. Pandit Sajan Mishra ji and Srimati Malini Avasthi and our very lovely audience gathered here. Dr. Sampat's book has been translated by Anshuman Pandey and Anshuman Jain of Bharatiya Gyanpith. Prabha Khetan Foundation needs no introduction when it comes to the promotion of literary heritage in India and beyond. The foundation started its journey in the world of literary endeavors back in the 80s when it was founded by late Dr. Prabha Khetan, an eminent personality who was a stalwart in every respect. Her philosophy, work is life, or karm hi jeevan hai, is the driving force of the organization. With the zeal to do better and the best and achieve stellar heights, the team of Prabha Khetan Foundation has curated events and sessions that have nationwide reach and global identity. The foundation boasts of events that are one of its kind. Some of the boutique literary initiatives include an author's afternoon, the Writes Circle, the Universe Writes, Kitab, Shabd, Kalam, and Loves. Prabha Khetan aims for limitless possibilities in creating a cultural capital. The foundation works as a cultural brand ambassador. Apart from the literature-oriented pursuits, Prabha Khetan Foundation focuses on literary initiatives and social welfare projects. Cultural initiatives such as Ek Mulakat, Tetati, Chaupal, Sur Aur Saaz, Chalchitra, Rangmanch are some of the curated ones with the focus on promoting music, performing arts, visual arts, dance, and our oral traditions. Social welfare projects include Muskaan and Rahat. Muskaan is a step towards popularizing heritage literature and culture amongst young children, and Rahat is a humanitarian project of the global organization
which provides protection, support, and relief to the vulnerable sections of the society. Throughout its journey, Prabha Ketan Foundation has endeavored to create, promote, preserve, and revitalize Indian art and culture by highlighting it through its verticals. Right from promoting local crafts and culinary heritage, the foundation has left no stones unturned to enrich the feel, the fervor, and the flavor of the destination, city of the event. Now, can I ask Ms. Dipali Bhasin to come forward, introduce the guests and the authors. Over to you. Thank you so much, Archana. Good evening, everyone. It is a proud moment for us to launch Mera Naam Gauhar Jaan, the Hindi translation of the biography My Name is Gauhar Jaan by Dr. Vikram Sampath. To launch the book, we have distinguished guests from the cultural fields with us here today. I would now request our distinguished guest, Pandit Sajan Mishra ji, to come on stage, please. Pandit Sajan Mishra ji. Pandit Sajan Mishra ji is a revered classical singer in India. He's an exponent of Khyal style singing of the Banaras Gharana. He has been awarded with Padma Bhushan for his immense contributions in Hindustani classical music genre. मैं बैठी हूँ आज मेरी खुशनसीबी है आप सभी को मेरा चरण स्पर्श थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही कमाल की कोशिश और काम हुआ है यहाँ पे माय नेम इज़ गौहर जान बुक which has set the trend for the way biographies should be written about Indian classical musicians and artists. इसका ट्रांसलेशन हिंदी में होना मतलब कि हम देश के और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और उनको सच मायने में बता पा रहे हैं कि किस तरह से एक आर्टिस्ट की लाइफ, पर्सनल लाइफ होती है और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करती है उनके आर्ट पे भी. Since we have a diverse audience here, my first question to you, Vikram ji. Let me start with requesting you to explain the term Tawayuf as we are talking about Gauhar Jaan. The root you have traced back to either Sanskrit or Arabic in the book, and there are multiple classifications of how Baiji is different from Jaan and other classifications. So for the benefit of the audience here, panel, in the audience, it's truly a very blessed moment for me. 12 years after Gauhar Jaan actually came out of my pen with that announcement, my name is Gauhar Jaan, that most of her songs would end with. Mera Naam Gauhar Jaan has now come out in Hindi, giving her a new lease of life. She was India's first recorded commercial artist on the gramophone, recording in 1902, almost 110 years ago, 20 years ago. And since then, the world of music, the world of art had somehow forgotten this trailblazer. And she had passed on in the pages of history as a barely discernible ghost. There were a few pockets, maybe in Kolkata, in other parts of India. In Mumbai, the Society of Indian Record Collectors, Dr. Suresh Chandwankar and others, Kushal Gopalka, all these very passionate individuals had kept her memory alive. In the lanes of Kolkata, near the Nakhuda Mosque, where the house where she lived was called Gauhar Building. Now it's become a pink, garish, dirty looking building where nobody even knows, but some of the old timers there still know ye Gauhar Bai ka ghar tha. So people did talk about it in whispers. So about 15 years ago, when I just stumbled upon her by chance while doing the research of my first book on Mysore, I found this box file full of letters of this visiting musician who had come to Mysore, and she died there. She was there in Mysore only for 2 years, 1928 to 1930. And there were lots of pleading letters to the Maharaja of Mysore, Nalvadi Krishnaraj Vadiyar, saying, please don't cut my income tax, increase my salary, increase the emoluments of my accompanist. And in typical bureaucratic indifference, rejected was what was written on all those files.
and suddenly she died. And that Box 5 was named the first singing and dancing girl of India. A gramophone celebrity, a superstar, a page 3 diva of her times, if you could call her that. It intrigued me instantly that why did someone like this have to come from Calcutta to distant Mysore? In those, even now you don't even have a direct train between these two places. And she came all the way there, died there, and there were those hospital bills. I went as, masquerading as her grandson to the KR hospital where she died, saying उनका death certificate मुझे दिखा दीजिए. किस कारण वो मरी वहाँ पे? Per reason of death unknown. That's how she passed away on 17th of January 1930. I also went with the local Maulvi to all the qabrs, the Qabristan committee in Mysore to see, is the first recorded Indian voice commemorated? Is there a mazar there in her honor? Sadly, none of the pre-independence tombs had any mention of Gauhar Jaan. So literally and figuratively, she just passed away in the pages of history. And as you rightly said, I think it speaks a lot about us as a nation that music is such an essential part of our life, right from birth to death to all the change of seasons to festivals. Whether it's a joyful or a sorrowful occasion, there is music for it, there is Bollywood, there is music all around us. But somehow we consider the documentation of that music or even writing about artists as being unimportant. And probably artists themselves, the great artists on stage, I don't know if they will concur with me, that they think, "Hamara kya hai? The art is much bigger than us. हमारे जीवन को लिखने का क्या मतलब है?" तो in that process, I think the life and the details of the artist somehow get erased, and it's very important that the struggles, an artist's life is full of struggles. We only see in the book there is one very nice Sahir Ludhianvi phrase which says, "जो साज से निकली है वो धुन सबने सुनी है, पर जो तार पे गुजरी है वो किसको पता है?" तो इन साजों से जो धुन निकलती है वो हम सब सुन के वाह वाह कर लेते हैं, पर द काइंड ऑफ परिश्रम, द मेहनत, द साधना, द तपस्या that they all do to bring out their art, we just take it for granted. We don't give that much of a, वो तो होता रहता है, there are so many people who do sadhana. So I think it's very important as a country that we also document and put the lives, the struggles of these artists in perspective, and this was just one such attempt. I'm sorry to divert from your main question, but I thought there was a need to give a preface, a lengthy preface to that. The word Tawaif comes with a lot of negative connotations today, thanks to maybe Bollywood, जहाँ पे दिखाया जाता है कि the kotha of a Tawaif is almost shown like a modern day, dance club or something where people can go and throw money, and it's just a numaish kind of a place, which is not what it was in the days of yore. The kotha of a Tawaif was a place where even the sons of nobility were sent to learn adab, tehzeeb. What it means to behave in a courtly manner, etiquette, all of that was taught in the kotha. And a tawaif was not someone who was readily available, so to say, quote unquote, to anyone and everyone. They had, of course, the freedom to choose a patron or a partner of their choice for as much time as they wanted. And tawaifs, and in the south you had the devdasis. These were the first taxpayers of British India, the first women taxpayers of British India. They were also the most educated women. The Gauhar Jaan herself composed prolific poetry. Her mother, Badi Malka Jaan, wrote an entire diwan of Urdu ghazals, which I've included in the book, Makhzan-e-Ulfat-e Mallika, about 500 exquisite Urdu poems, जो यहाँ पे कहीं नहीं मिली. Actually उसका came all the way there, died there, and there were those hospital bills. I went as masquerading as her grandson to the KR hospital where she died, saying उनका death certificate मुझे दिखा दीजिए. किस कारण वो मरी वहाँ पे? Per reason of death unknown. That's how she passed away on 17th of January 1930. I also went with the local Maulvi to all the qabrs, the Qabristan committee in Mysore to see, is the first recorded Indian voice commemorated? Is there a mazar there in her honor? Sadly, none of the pre-independence tombs had any mention of Gauhar Jaan. So literally and figuratively, she had just passed away in the pages of history.
And as you rightly said, I think it speaks a lot about us as a nation that music is such an essential part of our life, right from birth to death to all the change of seasons to festivals. Whether it's a joyful or a sorrowful occasion, there is music for it. There is Bollywood. There is music all around us. But somehow we consider the documentation of that music or even writing about artists as being unimportant. And probably artists themselves, the great artists on stage, I don't know if they will concur with me, that they think, हमारा क्या है? The art is much bigger than us. हमारे जीवन को लिखने का क्या मतलब है? तो in that process, I think the life and the details of the artist somehow get erased, and it's very important that the struggles, an artist's life is full of struggles. We only see in the book there is one very nice Sahil Ludhianvi phrase which says, जो साज से निकली है वो धुन सबने सुनी है, पर जो तार पे गुजरी है वो किसको पता है? तो इन साजों से जो धुन निकलती है वो हम सब सुन के वाह वाह कर लेते हैं, पर the kind of परिश्रम, the मेहनत, the sadhana, the tapasya that they all do to bring out their art, we just take it for granted. We don't give that much of a, वो तो होता रहता है, there are so many people who do sadhana. So I think it's very important as a country that we also document and put the lives, the struggles of these artists in perspective, and this was just one such attempt. I'm sorry to divert from your main question, but I thought there was a need to give a preface, a lengthy preface to that. The word Tawaif comes with a lot of negative connotations today, thanks to maybe Bollywood. जहाँ पे दिखाया जाता है कि the kotha of a Tawaif is almost shown like a modern day, dance club or something where people can go and throw money, and it's just a numaish kind of a place, which is not what it was in the days of yore. The kotha of a Tawaif was a place where even the sons of nobility were sent to learn adab, tehzeeb, what it means to behave in a courtly manner, etiquette, all of that was taught in the kotha. And a Tawaif was not someone who was readily available, so to say, quote unquote, to anyone and everyone. They had, of course, the freedom to choose a patron or a partner of their choice for as much time as they wanted. And Tawaifs, and in the south you had the Devdasis. These were the first taxpayers of British India, the first women taxpayers of British India. They were also the most educated women. The Gohar Jan herself composed prolific poetry. Her mother, Badi Malka Jan, wrote an entire diwan of Urdu ghazals, which I've included in the book, Makhzan-e Ulfat-e Mallika, about 500 exquisite Urdu poems, जो यहाँ पे कहीं नहीं मिली. Actually उसकी एक ही प्रति मिली, वो लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में. That is where we find the treasures of this country. So they were this 64 kala में पारंगत होना, so poetry, music, dance. A musician also needed to learn dance to be able to emote, other things, painting, art, the art of making pan and the art of serving that to the guests who came to the kotha. All of this was taught to them. So disregarding a lot of those subtle distinctions, as you said, at the topmost there was a hierarchy. There's nothing in India which doesn't have a hierarchy. I think there's a shreni in everything that we have. So even in the Tawaif society, at the top you had the Bais who only sang, who did not dance. Somehow it was thought that dancing reduced their importance. The Jans were the ones who sang and danced. And you had many categories who came, dominis and all of that, and a lower class, lowest of the hierarchy, who also indulged in flesh trade and who were probably what the society would call as prostitutes. But then the prudery of missionaries, of the British government, and of the educated Indian elite ensured that all these distinctions were erased, and every one of them was painted as नाचने गाने वाली and actually dubbed as a prostitute and thrown away into the pages of history. So along with Gohar Jan, you had Janki Bai of Allahabad, Zohra Bai Agrewali, Malka Jan of Agra, Husna Jan of Banaras. बहुत सारे नाम, all of those are just names today.
We have no history, we have no details of who they were and what their details are. But I think slowly these are voices which can be suppressed, but at some times these echoes do come back to haunt us, literally. Sure, absolutely. Thank you for giving us a beautiful background to place the conversation in as well. I open the question to the entire panel now. एक चीज़ जो आपकी किताब में हमें समझ आती है कि probably the wives of their time were the first truly empowered women. जैसे कि आपने बताया कि they were the first taxpayers as well, they were educated, they could hold their own property. बट जैसे जैसे आपकी किताब ख़त्म होने लगती है ये भी समझ में आता है कि ये एम्पावरमेंट बहुत ही सुपरफिशियल और फ्लीटिंग है, बिकॉज ये समय और रूप के साथ शायद उनसे छीन भी ली जाती है. If I was to place it in context of practically knowing some of the biggest names of music, आप as panelists हमें बताएं कि ये empowerment कितनी true है, कितनी rooted है और कितनी superficial है. नमस्कार. यहाँ उपस्थित हमारे साथ हमारी बहन मालिनी अवस्थी जी, विक्रम जी, अंशुमान जी और सिंजनी मेरी बिटिया है. हम लोग चूँकि शास्त्रीय संगीत परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे घर की परंपरा करीब 350 वर्षों की है, बनारस को बिलोंग करते हैं. और जैसा हम अपने बुजुर्गों से सुना है कि गौहर जान जी का मौजूद्दीन खां साहब से उनकी तालीम हुई और उसके पहले भी और कई उस्तादों से उनकी तालीम हुई, तो एक कहानी के रूप में सुनते आए हैं. लेकिन उनके पीछे जैसा कि आपने कहा, साहिर जी का एक शेर आपने पढ़ा कि वाकई में एक कलाकार को बनाने के लिए गुरु कितनी बड़ी तपस्या होती उस शिष्य के साथ. उनका नाम इतना ऊंचा हो गया गौहर जान जी का, और उनके साथ जो भी जिस तरीके का समाज में व्यवहार हुआ था उसका उन्होंने एक तरह से बदला भी लिया. उस गौहर बिल्डिंग में जाने के लिए 3 दरवाजे हुआ करते थे. ये हमारे पूर्वजों की कहानी, पंडित कंठे महाराज के मुख से सुना हुआ कहानी है कि गौहर जान के यहाँ जाने के लिए और 3 दरवाजे होते थे, और तीनों दरवाजे पे जैसे आजकल वीआईपी किसी भी मंत्री के घर जाते हैं तो सिक्योरिटी होती है, वैसी सिक्योरिटी में वो रहती थी. और विक्टोरिया का वो जो टांगा निकलता था बग्गी, तो गौहर जान भी ऐसी बग्गी पे निकलती थी और बड़ा उनको टॉर्चर किया गया. लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर कुछ भी करिए, पेनल्टी लगाइए, हमको जेल भेजिए. तो जेल तो नहीं भेज सकते थे, इतनी बड़ी फिगर थी वो. तो उनके ऊपर रोज 1 रुपए का फाइन लगता था और रोज निकलती थी बग्गी में घूमने के लिए कलकत्ता में. और सीखने की इतनी बड़ी ललक थी उनके अंदर में कि बहुत सारे कलाकार वहाँ बड़े बड़े विद्वान गए. मौजूद्दीन खां साहब जिनको सुनते थे, जिनके आशिक थे जगदीप जी, तो गौहर जान जी का उस समय फीस जो था, मतलब आप सोचिए कि 1905 में उनकी जो फीस थी वो सबसे मोस्ट हाईएस्ट फीस टेकर थी. वो 500 चांदी के सिक्के उनका फीस हुआ करता था. तो मौजूद्दीन खां साहब से उन्होंने कहा कि उस्ताद आपके जैसा तो हमने गवैया ही नहीं देखा है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिसको सुनता हूँ, मैं जिसका आशिक हूँ, एक बार उनको भी सुनो तुम. वो कौन है? जगदीप जी हैं, बनारस के जगदीप मिश्र. तो उनको बुलाया गया. तो कलकत्ता जब वो पहुँच गए तो उन्होंने मौजूद्दीन खां साहब से कहा कि जाके गौहर को बोलो कि मेरा मुंह दिखाई जो है वो 501 है और गाने का फीस 1000. तो गौहर जी बड़ी घबराई, बोले उस्ताद ये ऐसी फरमाइश करने वाले कोई आर्टिस्ट. और
इतने कुरूप थे वो देखने में, मतलब एकदम काले रंग के थे, नाक नक्श बहुत अच्छा था, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम सब करेंगे, जब हमारे ही उस्ताद आशिक हैं तो ये सब तो मुझे करना ही है। तो बुलाया गया जगदीप जी को, और जगदीप जी का जो मुंह दिखाई रस्म था वो पहले भेंट किया गया, और बड़ी आश्चर्यचकित हुई उनका स्वरूप देख के। तो मन ही मन कुछ बोल नहीं सकती हैं। तो जब गाना सुना उन्होंने तो एकदम उस्ताद के पास आके बोले कि सच कहा कि कौन सा अवतार इनके अंदर में है, क्या है, और विलक्षण वो भाव के भी बड़े माहिर थे। तो जगदीप जी को सुना तो उस जमाने में उनके साथ में बनारस घराने के एक सारंगी वादक थे गौरी शंकर जी, वो बजाया करते थे गौहर जान जी के साथ में, वो कलकत्ता में ही रहते थे। तो चूंकि हम लोग के परिवार में संगीत है तो इन सब कहानियों को भी सुनाया जाता था, और हमारे घर के ही बुजुर्ग लोग, बहुत सारा जद्दन बाई थी बनारस की, उनको दरगाही जी ने सिखाया। हुस्ना बाई थी जिनको कि साहेब करके बुलाया जाता था, इतनी इज्जत थी उनका, और महात्मा गांधी से उनका बड़ा पर्सनल संबंध था। तो ऐसे से महान लोग हुए हैं, और उसमें से गौहर जान जी एक ऐसी अद्भुत महिला हुई हैं, अद्भुत कलाकार हुई हैं। रहा बात तवायफ का, तो एक स्टैम्प जैसे किसी को लगा दिया गया, हम ही आप जैसे इंसानों के ही रूप में वो भी थे, उनको तवायफ का दिया गया। एक पर्टिकुलर एक समाज में उनका जन्म होने से उनको तवायफ का दर्जा दिया गया, लेकिन उनकी विद्वता के आगे बड़े बड़े कलाकार नतमस्तक हुआ करते थे। तो ऐसे तवायफ को तो मैं भी अपना प्रणाम करता हूँ, और वो बड़ी पुरानी परंपरा थी, क्योंकि उस जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ एक समय था जब तानसेन जी जैसे मौसीकी कलाकार भी हुआ करते थे, चिंतामणि मिश्र हुआ करते थे, न जाने कितने गोपाल नायक जी हुए, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए। लेकिन उस जमाने में थोड़ा सा तवायफ लोगों को बुलाने से ये होता था कि थोड़ा सा उनका शक्ल सूरत भी देखना है, गाना बजाना भी सुनना है, उनका प्रेजेंस बहुत ही लुभावना होता था, तो उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा होने लगी। तो गुरुओं ने अपनी छाप जो है अपने शिष्यों पे देना शुरू किया, अपना पूरा गाना, पूरा अपना सोच, तहजीब, और ये लोग इतनी तहजीबदार हुआ करती थी कि मैं आपसे क्या बताऊँ। कुछ बड़ी बड़ी जैसे सिद्धेश्वरी देवी जी थी बनारस में, तो उनके यहाँ जाने का मौका मिलता था, हमारे घर के पड़ोस में ही रहती थी। हमारे गुरु पंडित बड़े रामदास जी, पंडित सिया जी मिश्र जी की शिष्या थी। तो वहाँ जाने से ये दिखता था कि कितने तहजीब तमीज को उन लोगों ने जिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी राम मनोहर लोहिया नाम हो गया, उस समय वेलिंगटन हॉस्पिटल था, उसमें सिद्धेश्वरी देवी जी एडमिट थी, और मेरे चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी भी एडमिट थे। तो मैं दोनों लोगों को अटेंड करता था हॉस्पिटल में। तो उनको पैरालिसिस हुआ था सिद्धेश्वरी देवी जी को, और जब मैं उनके पास जाता था तो बोलती थी अरे बचवा, बचवा बोलती थी, मतलब बेटा, अरे बेटा, अरे बचवा, वो वाली बंदिश याद है? तो बनारसी में ही बोलती थी, कहो बचवा वो वाली बंदिश याद हो? तो अगर याद है तो हम बोलते थे हाँ जी जी, हम लोग सभी लोग उनको जी जी बोलते थे। तो सुना दो सुना दो सुना दो, तो सुनाते थे। तो आंचल में उनके कुछ सिक्के, कुछ रुपए बंधे रहते थे हॉस्पिटल में, कि समटाइम मतलब वो चाय वाला आएगा, आपको जरूरत होगा, एक अटेंडेंट तो रहती थी लेकिन फिर भी। तो उसमें से अठन्नी निकाल के, 1 रुपया निकाल के वो देती थी। तो हम लोग बोलते थे नहीं जी जी, बोले नहीं बेटा, आप लोग हमारे गुरु परिवार से। बड़ी मोती जी को मैंने देखा है कि क्या मतलब 90s के एज में
बनारस में एक मंदिर हुआ करता था, है अभी, महामृत्युंजय मंदिर। हर सोमवार को आती थी और बड़े रामदास जी के ड्योढ़ी के पास रिक्शा रुकता था और रिक्शा वाला जो था वो चल फिर नहीं पाते थे, उनको गोद में उठाता था और उसी कंडीशन में आके ड्योढ़ी पे अपना सर लगाती थी। तो इतना श्रद्धावान शिष्य, उनके अंदर में इतनी श्रद्धा घटित थी उस जमाने की, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी गायिकाएं हुई, तो उनका नाम जो है वो अपने उस्ताद से भी ऊपर हुआ और उस्ताद को उससे बड़ी खुशी होती थी कि मेरी शिष्या सब जगह जा रही है, गा रही है। तो गौहर जान जी के बारे में भी ऐसा था कि बहुत ही बड़ी गायिका थी और चूंकि कलकत्ता में ही रिकॉर्ड कंपनी पहला खुला, तो ये अवसर भी उनको मिला कि पहला रिकॉर्ड उन्हीं का हो। और उस पर विक्रम जी ने इतना बड़ा कार्य किया कि उनको पुनर्जन्म दे दिया। ये बहुत ही हमारे सब के लिए गौरव की बात है कि ऐसे लोगों को, हम कलाकारों के बीच में ही चर्चा रहता है कि गौहर जान थी, हुस्नाबाई थी, सिद्धेश्वरी देवी थी, इन लोगों के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए समाज को कि कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, देश के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजों से फाइटिंग में भी उनका कंट्रीब्यूशन था, फाइनेंस से लेके, मतलब उनके थ्रू ही आप समझ लीजिए कि कितने, जैसे वो एक तरह से हमारे देश की गुप्तचर भी थी। हम सच बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरी है और वो सत्य भी है। तो उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन लोगों ने। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि विक्रम संपत जी स्वस्थ रहें, खुश रहें और इतना बड़ा कार्य इन्होंने किया। और ये जरूर इन्होंने ये सोचा कि ये बुक जो है आम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, तो हिंदी में इसका अनुवाद जो है, अंशुमान पांडे मेरा छोटा भाई, हमने अपने 2 भाइयों को इस कोविड में खोया, अपने बड़े भाई पंडित राजन मिश्र जी को और अंशुमान जी को। अंशुमान जैसा भी व्यक्ति हमको बहुत कम देखने को मिले। किसी भी हालात में ये यार ये कैसे होगा, पुलिस परमिशन लेना है, ये प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम करना है, हर समय वो व्यक्ति अवेलेबल होता था। और अंशुमान जैन जी उनके सहयोगी, और इन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया इस पुस्तक को। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ और इस पैनल में हमको आप लोगों ने ये स्थान दिया, इसके लिए मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन और विक्रम जी, अंशुमान जी, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत ब्यूटीफुली इसको सम अप किया है। और अब कन्वर्सेशन को एक थोड़ी सी दूसरी तरफ ले जाती हूँ। सवाल सभी के लिए ओपन है, आप में से कोई भी इसके बारे में बताएं। अगर दीदी आप कुछ बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। विक्रम जी ने अपने किताब में ठुमरी को ऐसा कहा है जैसे कि एक औरत की आवाज़ हो क्लासिकल म्यूज़िक के क्षेत्र में। उसके लिए उन्होंने कई वजहें भी दी हैं, ना सिर्फ वो लिरिक्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो नखरा है उसको गाने में, उसके बारे में, पर और भी कई चीज़ें हैं। जिस तरह से राग का चयन है ठुमरियों के लिए, या ताल की चंचलता है, हर प्रकार से आपने इस क्षेत्र में, इस जॉनरा में इतना काम किया है। आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट करती हैं? सबसे पहले तो सभी को यहाँ प्रणाम करती हूँ, आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, और यहाँ सब इतने हमारे प्रिय कलाकार हैं, सभी को नमन करती हूँ। विक्रम जी को नमस्कार करती हूँ और हमारे बहुत प्रिय अंशुमन पांडे के परिवार से सब लोग आए हैं, उन सबको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अंशुमन आपको बधाई। आज ये भी एक इत्तेफाक है कि एक नाम राशि हैं दोनों, और दोनों बहुत प्रगाढ़ मित्र भी हैं। मुझे लगता है कि एक मैं ज़रूर 2 पंक्ति ज़रूर अंशुमन के लिए कुछ कह के फिर आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत व्यक्तिगत
जुड़ाव था, काम तो था, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में इतना सरल, इतना संकोची, मन में बातें रखने वाला और इतना एफिशिएंट, और कभी सामने आने की कोई चाह नहीं। और आज भी जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो वो सामने नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, बड़ी भीड़ में, कमानी में हम लोग खत्म हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन। दीपक यहाँ पे हैं, उन्हें याद होगा, अंशुमन कहाँ, अंशुमन को फोटो नहीं खिंचानी, सामने नहीं आना है। और आज जब एक कहते हैं कि एक रचना को रच कर इंसान अमर होता है, तो आज भी अंशुमन है नहीं, लेकिन ही मस्ट बी वॉचिंग। और ये बहुत सुंदर अच्छा काम करके गए, क्योंकि मैं विक्रम आपको बताना चाहूँगी, आपके उस पर आती हूँ मैं, तो कुछ दो बातें बताना चाह रही थी। एक बड़ी कमाल की बात है कि अंशुमन का चूँकि स्पिक मेके से, गुरु जी से, पंडित रविशंकर जी से, आप सब से, भैरव से भैरवी तक में भी जुड़े रहे, वो इतना लगाव था कि एक प्रपोजल उसने हमारे साथ बनाया था, जो हम लोगों ने IGNC में करने के लिए दाखिल किया था। दीपक को याद होगा कि ठुमरी के अलग अलग जो कलाकार, गायिकाएं थी, सबका अंदाज जुदा था, और सबके अंदाज एक एक, किसी की भी ठुमरी यदि है, जैसे रसूलन बाई जी का आप अंदाज बता सकते हैं, अलग है, बेगम साहिबा का अलग है, जानकी बाई छप्पन छुरी जी का अलग है, अलग रेंज स्केल। और ये प्रपोजल उनका था कि हम लोग बॉम्बे में इसको करें, कि 4 अलग अलग, और मुझसे बोले कि आप ही कर सकती हैं, क्योंकि उसमें डिटेल्ड स्टडी और डिटेल्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनफैक्ट वो आज भी IGNC में पड़ा है प्रपोजल, जोशी जी को मैंने ही दिया था मिलकर, करीब हो गए इस बात को 4-5 साल। तो वो जो उसके अंदर एक धुन थी ऐसे काम को समझने की और करने की, आई कैन रिलेट दैट। आपकी किताब इत्तफाकन मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की, ही सॉ इट एट द एयरपोर्ट, और अवनीश ने मुझे ला करके दी 9 साल, 8, मेरे ख्याल में 2013 की बात है ये। और हम एक सांस में पढ़ गए, पढ़ते चले गए। मुझे लगता है कि आप सबको, सारे आर्टिस्ट्स को, सारे कलाकारों को माय नेम इज़ गौहर जान इंग्लिश में, और अब ये किताब मेरा नाम गौहर जान हिंदी में ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो एक सबक की तरह से है। दरअसल वो एक फनकारा की ज़िंदगी के बहाने, क्योंकि जब विक्रम है तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिटेल्स रिसर्च है उसमें, लेकिन उस दौर का इतिहास, रिकॉर्डिंग का इतिहास, और साथ ही साथ रियासतों का इतिहास, जिसके बारे में बताया नहीं जाता कि हम जो आज जानते हैं संगीत, वो वाकई यदि बना और संवरा, कुछ कुछ रह गया, तो उसमें रियासतों, राजा और महाराजाओं, दरबारों का कितना बड़ा योगदान था, वो पूरा आपको इनके उससे मिलता है। और साथ ही साथ आपकी किताब में जो हर चैप्टर में मलका जान, उनकी माँ की जो एक शेर से बात शुरू होती है, और कमाल की बात है कि वो पूरा चैप्टर उस शेर पर ही केंद्रित है। तो जिनकी इतनी ब्रिलियंट मदर हो, मतलब मुझे लगता है कि नाम गौहर जान जी का हो, लेकिन माँ उनकी बहुत ब्रिलियंट रही होंगी, जो उस दौर में आजमगढ़ में हो करके अपनी बेटी के फ्यूचर को देखते हुए कलकत्ता लेके जाती हैं, उनको वहाँ पर प्रतिष्ठित करती हैं, उनके लिए एक ज़मीन तैयार करती हैं। उनकी उस्ताद हैं, उनको वो जैसा बता रहे हैं खुद ज़हीन थी। और गौहर जान जी का जो रेpertoire है, वो देख के मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कलाकार, थैंक्स टू यूट्यूब, अब इस दौर में लोगों ने लेटली अपलोड किया, तो आप उनकी ठुमरी और सुन सकते हैं, दादरा सुन सकते हैं, तो आप घूमर भी सुन सकते हैं, होली भी सुन सकते हैं, फारसी और अरबी की गाई हुई ठुमरी सुन सकते हैं, नात गाए हैं उन्होंने वो सारी। तो ये एक जो बेगम अख्तर जी के लिए भी हम लोग कहते हैं कि बहुआयामी, एक हम लोग के बीच में आदरणीय सोनल जी भी आ गई दीदी, तो जोरदार तालियां उन्हें। तो मुझे लगता है कि उस पूरी किताब को जब मैंने पढ़ा, तो मैंने उसमें बहुत कुछ कहीं ना कहीं अपने उस्तादों से सीखी हुई, सुनी हुई बातों को महसूस किया। गुरु शिष्य परंपरा परिवार में किस तरह से उस दौर में वो गढ़ी गई होंगी। और आपने एक सवाल जो बाई जी और तवाइफ का पूछा था, मैं आपको बताऊं कि
महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत रसूख का शब्द है बाई जी, बहुत सम्मान से बोलते हैं। मेरी एक मौसी का नाम बाई, हम लोग बाई मौसी बोलते हैं उनको। मुझे लगता है कि उस दौर में एक खुद मुख्तार औरत जो अपने दम पे पैसे कमा रही थी, जो खुद लोग उनके पास आते थे, तो वो प्रतिष्ठा के कारण बाई जी कहना शुरू हुआ। और धीरे धीरे, जैसा हम सब जानते हैं कि अपभ्रंश और चलन बिगड़ते देर लगती नहीं, वो बाई जी का मायने कुछ और हो गया। वरना पुराने लोग आज भी महाराष्ट्र में आप देखें, हम जितने भी, चाहे वो हम जीजाबाई, पुराने जितने भी आप देखें, पुतली बाई, जितने बड़े हम, जो बापू की माँ थी, गुजरात में हमारे यहाँ बाई बोलते हैं, राजस्थान में सब जगह बोला जाता है। तो उस दौर में जी, जोधा भाई, सभी उस दौर में मुझे लगता है कि वो पहली अपने दम पर, अपनी महफिल, अपनी ठसक, अपनी ताकत के साथ समाज पे प्रतिष्ठित हुई और इज्जत के साथ बाई जी कहा गया, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उपनाम बन गया। दूसरी चीज मैं यहाँ पे जो आपने कहा ठुमरी के बारे में, तो जाहिर है कि मुझे लगता है जैसे ध्रुपद से शुरुआत हुई और वहाँ से ख्याल गायकी आई है, संगीत तो एक धारा है, अपने रास्ते चुनती हुई आगे बढ़ती है। और ठुमरी मुझे लगता है ये बनारस में आप यदि सुनेंगे तो हम कृष्ण से जोड़ते हैं, प्रणय है आध्यात्मिक प्रेम में। और आध्यात्मिक प्रेम जिसको आज आप सूफियाना कह लें, आप रूहानी कह लें, उसमें एहसास सबसे बड़ी बात है। हमारी गुरु कहती थी आदरणीय अप्पा जी कि बेटा गावे बहुत आसान, ठुमरी गावे सबसे कठिन। ख्याल गाने में टेक्निकलिटी है, तान है, शुद्धता का ध्यान रखना है, उसमें आपने तप के रियाज कर लिया, आप कर सकते हैं। लेकिन ठुमरी के लिए दिल चाहिए, और वो दिल यदि कोमल नहीं है तो वो राग को बरतना और 4 बोल की ठुमरी है उस बात को कहना। और ये कमाल की बात है, मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगी कि हम लोगों ने एक से एक बड़े कलाकारों को सुना है, लेकिन गौहर जान जी हों या बड़े गुलाम अली खान साहब, कमाल की बात यह है कि 3.5 मिनट की ठुमरियां हैं इनकी, और आपको ये नहीं लगता कहीं कोई बात अधूरी रह गई। बड़े गुलाम अली खान साहब की आप कोई ठुमरी सुन लें 3.5 मिनट में लगता है कि इसके बाद भी भैरवी में कुछ बच गया, पहाड़ी का रंग, अब इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? आज 20-20 मिनट तक लोग ठुमरी गाते हो, बात नहीं पैदा होती। ये सबसे बड़ी बात है। रिकॉर्डिंग में जो हम लोग जैसे रेडियो वाले लोग हैं, युग के, हम तो मानते हैं कि हम लोग को 4.5 मिनट का कट, तो हमें पता होता था अपनी बात। गज़ल भी है, उसके भी 3 यदि अशार हैं तो बात मतला मख्ता सब कह करके हमें 4.5 मिनट में ख़त्म करनी, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आखिरी शेर बजेगा नहीं। तो उस ज़माने में रिकॉर्डिंग में जिसमें कि 10 सेकंड की जगह माय नेम इज़ गौहर जान की भी बचानी है, वहाँ पे वो कैसे सपाट ताने लेकर के 3 तानों में लेकर राग खत्म। ये चाहे वो हो, चाहे काशी बाई जी हो, चाहे जानकी बाई जी हो, कमाल है। ये एक अद्भुत जादू है जो मुझे लगता है कि आजकल कलाकारों के लिए बहुत बड़ी सीख की बात है कि रिकॉर्डिंग कभी कभी आपको खुद अपना आईना दिखलाती है कि कल को आप न रहें और आपको सुना जाएगा। ऐसी महफिलें नहीं होंगी, तो जब आपको सुना जाएगा, और आज जब लोग कहते हैं पेशेंस नहीं है, तो आप 4 मिनट में ऐसे कैसे वो जादू पैदा करें, वो तासीर पैदा करें। वहाँ पे मुझे लगता है गौहर जान जी एक ट्रेंड सेटर रही हैं कि 3.5-4 मिनट में अपनी चीज़ और ठुमरी को पेश कर देना, पूरे कलाम को गा देना, ये आज भी जादू है। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं 3.5 मिनट में लता जी जो कह गई, जो बात कर गई, वो बड़े बड़े रागों में बात नहीं आ पाती। तीसरी बात जो आपने एक पूछी थी तवाइफों के बारे में कि उनकी इज्जत और रसूख के बारे में, फीमेल एम्पावरमेंट, तो आप सोचिए, मुझे लगता है कि आज भी एक औरत अपना मुकाम बनाती है। और हम दूर क्यों जाए, गाने की क्षेत्र की बात लेते हैं, कला के क्षेत्र में शी इज़ ऑलवेज जज्ड, शी इज़ ऑलवेज जज्ड। वो हमेशा एक कह सकते हैं कि बहस और कह सकते हैं एक संवाद, गॉसिप या एक कौतुक का मसला होती है। आज 100 साल पहले कैसी रही होंगी, और उस ज़माने में
बिल्कुल सही बात आपने फरमाई है कि गदर में तो ये प्रूव हुआ 1857 में कि स्वतंत्रता संग्राम में कि जितनी भी हमारी ऐसी अदाकारा, जितनी भी गायिकाएं थीं, ख़ासतौर पे कानपुर में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी हमारे कर्नल थे, उन सब से मुलाकात करके क्रांतिकारियों को यहाँ से वहाँ खबरें देती थीं। हुस्नाबाई का तो बड़ा मशहूर आपने जो जिक्र किया कि बापू के कहने पर उन्होंने गाना लिखा, चुन चुन के फूल ले लो, जी विद्याधरी बाई जी, चुन चुन के फूल ले लो, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। ये उन्होंने खुद रचा और हुस्नाबाई जी ने अध्यक्षता की उस मजलिस की, और वहाँ पे वो अपने आभूषण छोड़कर लोहे के कड़े पहनकर आई, एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए। बनारस में तो ये भी किस्सा है कि जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने यूनिवर्सिटी बनाई और दान लेने गए दरभंगा राज से, महाराज बनारस सब जगह से दिया, तो वो पूरे बनारस में घूमे। दाल मंडी से उनके पास संदेश गया कि मैं इतना ये बात अखरी है कि आपने सबका तो आपने लिया सहयोग, हम क्या इतने गए गुजरे हैं, आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमारी तालीम नहीं हो पाई, लेकिन नई बहू बेटियाँ सीखें बनारस के लिए, इसलिए हम कुछ भिजवाते हैं। और रुमाल में, गमछा में उन्होंने अपने जेवर बांध करके पंडित मदन मोहन मालवीय महामना जी को दिया। तो ये जो बनारस का हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारी गायिकाओं का, गाने वालियों का, तवाइफों का, उसमें भी धन लगा है, उनकी मेहनत की, उनके दिल से निकली एक कमाई है। और इस पे बहुत खूबसूरत काम एक अमृतलाल नागर जी का जो किताब में है, ये कोठे वालियाँ, उसमें विद्याधरी बाई जी से बात करने लेकर उनको सिद्धेश्वरी देवी जी ही गई थी, वो उनको लेकर गई और उनसे उन्होंने पूरा सुना। वो किस्सा उन्होंने बताया है कि हैदराबाद में कॉन्सर्ट हुई थी, आपने शायद उसका जिक्र किया, गौहर जान जी को उन्होंने कहा कि सबसे आज के ज़माने में पॉपुलर सिंगर यही हैं, तो बापू ने कहा बिल्कुल बुलाओ, क्योंकि बापू में ये एक कमाल की दृष्टि थी कि पूरे देश के हर वर्ग को उन्होंने जोड़ा था। वो जानते थे कहीं पर आज़ादी की लड़ाई में कोई वर्ग छूटे ना। और गौहर जान जी इस शर्त पे तैयार हुई कि बापू आएंगे तो वो गाएंगे। देखिए यहाँ इज्जत की बात थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं उस शान की बात थी, लेजिटिमेसी हासिल करने की बात थी, क्योंकि बापू एक जीते जी आइकन थे और बापू नहीं आ सके किसी कारण से। तो आगे किस्सा आप बताएंगे कि उन्होंने शायद गाया था लेकिन पैसे आधे दिए जितना कबूल किया था कि वो दान देंगी, उन्होंने आधे दिए कि आपने वादा नहीं निभाया तो मैं देती हूँ लेकिन पूरा नहीं दूंगी। ये अपनी बात जैसा उन्होंने गाया है, आन बान जिया में लागी, ऐसी आन बान शानदार गौहर जान। और जो आप किताब पढ़ें, उस ज़माने में मॉडलिंग करी है उन्होंने, उस ज़माने में फ्रांस के शायद माचिस के मैच बॉक्स, हाँ, स्टिक पे उनकी, तो आज थोड़ी सी किसी फ़ोटो छप जाती है तो लाइक बटोरने का मोह नहीं। तो आप सोचें कि एक पराधीन भारत में कोई कलाकार अपने दम पे, गायन के बल पे ऐसी स्वावलंबी हो, जिसको उसकी माँ ने स्वावलंबी बनाया हो कि विदेश तक में, एंड शी इज़ रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट वुमन टू बी रिकॉर्डेड। मुझे लगता है ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की दास्तान है गौहर जान, और एक औरत की ज़िंदगी में कैसे कैसे संघर्ष आते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आँख नम नहीं। कोई औरत ऐसी है नहीं, कोई कलाकार ऐसी है नहीं जो गाय और जलील ना हो, समाज से जिसको ताने न मिले, धिक्कार न मिले, चाहे नृत्यांगना हो चाहे कलाकार हो। लेकिन कलाकार वही है जो उन सब चीज़ों को यहाँ ले करके उतारता है यहाँ से, तो बात यहाँ लगती है क्योंकि सब उसने पिया है। और गौहर जान जी पे जो बीती उनके गाने पे दिखता है। आई एम सो हैप्पी कि इसका हिंदी तर्जुमा हुआ है सो दैट इट रीचेज अ वाइडर ऑडियंस, और आज के ज़माने में शायद ये नए मानक गढ़ेगी। मैं विक्रम जी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत कहानियाँ तड़प रही कहे जाने के लिए, इतनी कहानियाँ हैं। हम तो बनारस में, मुझे तो लगता है कि ये ख़जाना बैठे हैं आपके पास, हम लोग के घंटों बीत जाते हैं, कितने किस्से कहानियाँ, क्योंकि आपने सुना ना 350 वर्ष परंपरा पुरानी, आपके बाबा सारे लोग। और पंडित किशन महाराज जी पे मुझे आश्चर्य होता है, कोई ऑथेंटिक बायोग्राफी नहीं है, जो अपने आप में चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थे महाराज जी। सितारा देवी जी पे इस तरह का कोई वो नहीं, जो जिनकी ज़िंदगी उस दौर में, मतलब मुझे लगता है कि
शायद एक मैंने किताब उस दौर की गुलाबबाई जी की पढ़ी है, जो दीप्ति ने बहुत अच्छी किताब एक लिखी है, नौटंकी की मलका, और कॉन्टेम्प्रेरी थी उस दौर की, लेकिन उनका भी उस दौर का है कि गुलाम भारत में कानपुर में उनकी नौटंकी में बहादुर लड़की में उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार और कहानी लिखी थी जो बगावत जिसकी ललकार पे हो जा रही थी, तो शो उसके कोतवाल ने रुकवा दिए थे। पहले देखने आया वो नौटंकी की इसमें कौन सी स्क्रिप्ट ऐसी है जिससे बगावत की बू आ रही है, और फिर वो शो रुकवा दिया गया। ऐसी क्रांतिकारी मुझे लगता है ये औरतें हमारे यहाँ हुई हैं, और ये 100 साल पुराने का इतिहास है। तो आज की औरतों को, कलाकारों को तो मुझे लगता है उनसे बहुत आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये उस समय आगे गई जब इनके संग ना हालात थे ना समाज था। आज आपके साथ हालात भी है, समाज भी है, तो मुझे लगता है कि आर्ट को आगे बढ़ाने में हम सब जितना जो कर सकें वो कम है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल इसीलिए शुरुआत ही हमने डिस्कशन की यहाँ से की थी कि बहुत सारे मिथ्स हैं जो इस टर्म के साथ जुड़ जाते हैं, जो शायद अक्सर ले ऑडियंस को नहीं समझ में आ पाता, और आज आप लोगों के बैठने से ये सब डिस्पेल होना ज़रूरी है। कमिंग बैक, हम लोग जिस डिस्कशन में आगे बढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछती हूँ। जिस समय ग्रामोफोन पे पहली बार गौहर जान जी ने रिकॉर्डिंग की, उस समय कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया और उसको काफ़ी स्केप्टिकल नज़र से भी देखा कि इससे शास्त्रीय संगीत की प्योरिटी, शुद्धता भंग हो जाएगी। कुछ लोगों को ये चिंता थी कि बंदिश ठुमरी, बोल बनाओ ठुमरी का अंत हो जाएगा, मगर उन्होंने जो रिस्क लिया उससे आज हम देखते हैं कि उनका नाम अमर हो गया। मगर आज हम वापस उस दोराहे पे खड़े हैं जहाँ पे एक नए तरीका का मीडिया हमारे सामने है, विच इज़ द सोशल मीडिया। उस समय ग्रामोफोन नया था, आज सोशल मीडिया नया है, और दोबारा एक कंजर्वेटिव सेटअप है जो मानता है कि ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स में वो बात नहीं है, हम रीच आउट नहीं कर सकते, या फिर इसमें वो शुद्धता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इस पे आपके कमेंट्स को जानना चाहूँगी। नमस्कार। सबसे पहले फिर एक बार क्षमा याचना करती हूँ। यहाँ मैं तो अपनी कुछ दो बातें कह के भाग जाऊँगी, विक्रम, विद योर परमिशन। आपके प्रश्न का जवाब बाद में देती हूँ, पहले मेरे मन में जो दो छोटी बातें वो कह देती हूँ। मैं मालिनी का सुन रही थी और एक बात मेरे जहन में आई जो मेरे गुरु कहा करते थे, भरतनाट्यम के गुरु प्रोफेसर US कृष्ण राव सर बेंगलोर में, कि जैसे इन्होंने ठुमरी की बात की कि भाई 3 मिनट 4.5 मिनट में समाप्त होती है और उसी में सारी बातें कह देनी होती हैं, गा लेनी होती हैं, बता देनी होती हैं, भाव वगैरह वगैरह आवाज़ से। उनका ये कहना था कि अतिशयोक्ति अलंकार जो है, एग्जैजरेशन, दैट शुड बी अवॉइडेड एवरीवेयर। तो अलंकारों में उपमा है, उत्प्रेक्षा है, वगैरह वगैरह, अतिशयोक्ति अलंकार भी है। तो कहते थे कि हज़ारों लाखों गुलाबों से थोड़ा सा इत्र बनता है, पूरी बोतल उड़ेलने की आवश्यकता नहीं होती है, 1 आध 2 छींटे काफ़ी होते हैं। तो यही बात कला और कलाकारों को लागू होती है, चाहे म्यूज़िक में हो, संगीत हो, नृत्य हो, काव्य हो, जो हो। काव्य में फिर भी अलाउड है, जैसे हमारे तुलसीदास जी कह गए, जो आपने देखा है वो उसमें रामचरितमानस में, कि जब एक एक राजा उठ के गए और शिव जी का धनुष उठा नहीं पाए, हिला नहीं तक पाए, 10,000 इकट्ठे हो गए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठा बन नटर ही नटारा। तो 10,000 राजा इकट्ठे होके उस धनुष को उठाने चले। नाउ इवन टू इमेजिन दैट इज सो फनी। तो अतिशयोक्ति से आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं वो यदि तय हो जाए तो वो अलाउड हो सकता है, एक बात। दूसरी बात कि अभी ये आपने अंत में जो कहा कि ये क्रिटिसिज्म वगैरह 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 आपने भी कहा, आपने भी पूछा। अभी हाल की बात है, हफ्ता भर नहीं हुआ, केरल का पालघाट है जो पलक्कड़,
वहाँ पे मोहिनी अट्टम की एक जानी मानी नृत्यांगना नृत्य कर रही थी गोपाल जी के मंदिर में, पूरा ऑडियंस था, और बगल में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का घर था, एक अलग कौम के होंगे शायद थे, लेकिन वहाँ से संदेश आया कि बंद करो, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ये अभी की बात है, तभी की बात नहीं है, अभी की बात है। तो ऐसा, इसके ऊपर तो अभी बहुत बवाल मचा, और फिर आपने जो पूछा कि यू नो हाउ विल इट बी ऑन दी ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, आपका जो पूछने का प्रश्न था मुझे जो समझ में आया। जी एब्सोल्युटली। हाँ, सो वहीं पे सोशल मीडिया बहुत काम में आया, और सारी आर्टिस्ट कम्युनिटी ने और हमारे नागरिकों ने वहाँ के उठा लिया मुद्दा। तो जो बात शायद पहले नहीं हो पाती थी कि कुछ 100, 200, 500, 700 में सिमट जाती थी, एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ, जैसे जब मैं उभरी, मेरी अपनी बात मैं आपको बताती हूँ कि 1961 में मेरा रंगेतरम हुआ बेंगलोर में, 1963 में बीए करके मैं घर से भाग गई बम्बई से मेरे गुरु के पास दक्षिण। उसके बाद जब न टेलीविज़न था, न मोबाइल फ़ोन था, कोई ये साधन सुविधाएं नहीं थीं। जब तक ये 70s के दशक में आया, वो 15 वर्ष, नाम कैसे हुआ? वर्ड ऑफ माउथ। मैंने फला को देखा, बहुत बढ़िया, चांस मिले ज़रूर देख लेना। तो ये एक चीज़ जो बहुत मुझे लगता है कि बढ़िया थी, जिसमें क्वालिटी थी, कि मैंने देखा है, मेरी गवाही है कि बहुत ही सुंदर, जानने लायक, सुनने लायक, देखने लायक, वो अब नहीं है। अब पहुंच बहुत ज़्यादा है, हज़ारों लोगों तक आप यूं पहुंच जाते हैं। मालिनी जी इज़ वेरी वेरी, शी इज़ व्हाट यू कॉल पॉपुलर, और क्या जो भी हैं, तो उनके लाखों में फैंस हैं। हमारे तो नहीं हैं, क्योंकि हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम पुराने ज़माने के, क्या करें, ऐसे ही रह गए। मेरे सामने तो नहीं अभी होड़ नहीं लगानी है, लेकिन तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों का यहाँ पे जो बैलेंसिंग होना है, वो शायद हो ना हो, आई डोंट नो। लेकिन इससे एक बात मैं आपको और बताऊं कि हो क्या रहा है कि जैसे आपके रियलिटी शोज़ हैं, उसमें कितना 2.5-3 मिनट का तो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें नाम कमा गए, चेक मिल गया, पब्लिसिटी मिल गई, लेकिन कहाँ वो 3-3.5 मिनट की रिकॉर्ड गज़ल ठुमरी की, और कहाँ ये 2.5-3.5 मिनट का कार्यक्रम रियलिटी शोज़ में, जिसमें ज़्यादातर बाद में आप उनका नाम तक नहीं सुन पाते हैं। क्योंकि जो तैयारी है वो 2.5-3 मिनट की ठुमरी गाने के पीछे, वो तैयारी नृत्य में नहीं हो पाती है, अनलेस यू हैव वर्क फॉर years and years and years। गुरुओं के डंडे खाए हैं, गुरुओं ने कान मोड़े हैं, लात पड़ी है, वो तैयारी, वो तपस्या, वो साधना, जिससे आप वो एक छींटा डाल सकते हो अपनी कला का, और उस छींटे की सुगंध पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है। ये भी एक अजीब बात है। तो मेरे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि मेरे दादाजी आपके बारे में बात करते थे, मैं सोचती हूँ आई एम अ डायनासोर। यस, हैं तो हैं, क्या किया जाए, अच्छी बात है। मेरी मामी डांस करती थी, हमेशा आपका फ़ोटो रखती थी। तो ये जो बातें हैं, उसके सामने जो आज का दौर है कि हर रोज़ हज़ारों नई चीज़ें उभर के आ रही हैं, क्या देखें क्या ना देखें, और देखने के बाद भूल गए। तो ये एक बड़ी चैलेंज हमारे सामने है, और उस चैलेंज को किस तरीके से फेस करेंगे, उस चैलेंज को कैसे अपनाएंगे, वो तो आज के कलाकार जाने। लेकिन बार बार यदि पूछा जाता है कि आप लोग जैसे कहाँ हैं कलाकार, तो मैंने कहा ढूंढ लीजिए मिल जाएंगे। लेकिन उन कलाकारों को जिनको खेवना नहीं है
कि हम हर रोज़ चमकें, ये हर रोज़ हमारा नाम आए, हर रोज़ हमारा यूट्यूब में इतने फॉलोअर्स बढ़ें, ऐसे कलाकार यदि आते हैं तो शायद मुझे लगता है कि जिसको हम कला कहते हैं, विद्या, कला विद्या है, कला इज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली। वो कला विद्या वास्तव में बनी रहेगी, वरना भारत एक बहुत ही पुराना देश है, पुरानी संस्कृति है, हम अपने सौगंध खाते रहते हैं, हज़ारों वर्ष पुराना है, अच्छी बात है। मेरा इतना ही कहना है और उसके बाद मैं आपसे आज्ञा लूँगी। मुझे क्षमा करेंगे पंडित जी और आप सब। विक्रम तो करेगा ही, हाँ हाँ कर दूँगी, ज़रूर ज़रूर, यदि पंडित जी पान खिलाएंगे तो। तो बस मुझे आपसे थोड़ी सी ऐसी बातें शेयर करनी थी, बाकी तो गौहर जान, लेकिन मैंने रसूलन बाई को सुना है, बता दूं आपको, केसर बाई को सुना है, रसूलन बाई को सुना है, सिद्धेश्वरी देवी मुझे सोना बाई कहती थी। आई बीन वेरी लकी कि बचपन से ऐसे ऐसे ओंकारनाथ ठाकुर जी, ये तो ठुमरी वगैरह की बात है, लेकिन संगीत की बात कर रही हूँ कि महान संगीतकारों का परिवार में आना जाना रहा, तो कान बहुत ज़्यादा ही खुले हुए हैं। कहीं भी थोड़ा श्रुति भेद हो जाता है तो ऐसे हो जाता है जैसे ताल में यदि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो जीवन में स्वर और ताल, सुर ताल में जीवन चले तो जीवन सार्थक है। Dr. Sonal Mansingh ji, Pandit Sarjan Mishra ji, Srimati Malini Awasthi ji, Dr. Vikram Sampath ji, thank you so much for your enriching discussion and sharing your experiences, your views and snippets of the life story of a truly inspirational woman, Gauhar Jan. I would like to call Ms. Ina Puri, Ehsaas Women of Gurugram, to come up on stage and felicitate respected Dr. Sonal Mansingh ji. Who doesn't know Dr. Sonal Mansingh ji? She really needs no introduction. She's a legendary classical dance exponent, famous for... फिर भी बता देना चाहिए ना? She's a legendary classical dance exponent, famous for Odissi and Bharatanatyam dance. She's also an exponent of other Indian classical dance forms. She shuffles multiple roles as a teacher, researcher, choreographer, and social activist. She has been awarded Padma Bhushan and Padma Vibhushan. I would like to call Huma, Ehsaas woman of Delhi, to come up on stage and felicitate respected Dr. Sonal Mansingh ji. I would like to invite all my fellow Ehsaas women of NCR to come up on stage, please. I would kindly request Ms. Anindita Chatterjee, Executive Trustee of Prabha Khaitan Foundation, and Shri Sahu Akhilesh Jain, Managing Trustee of Bharatiya Gyanpith, to join us all on the stage.
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for the time, the talk, and your views about this beautiful book that we have received a translation of in Hindi today. We have with us Anshuman ji as well, who has worked upon the translation in Hindi. And before we invite him to speak a few words regarding the book, we would like to thank our panelists for today for their time and their wonderful views. Thank you so much. I now request Anshuman Jain ji to come to please say a few words. नमस्कार, आप सबका आज शाम में हार्दिक स्वागत है। बात छोटी सी है, पर सबसे पहले क्योंकि ये कार्यक्रम गौहर जान पुस्तक के हिंदी अनुवाद के बारे में है, तो एक बात ये कहना चाहूँगा कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा से जो गुरु से सुनकर शिष्य शिक्षा ग्रहण करता था, वह एक प्रकार से अनुवाद का प्रारंभिक रूप था। तो अनुवाद से हम ये समझ सकते हैं कि वो एक ऐसी विधि है, ऐसी व्यवस्था है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। और मुझे खुशी है कि गौहर जान की इस जीवन गाथा को अंग्रेजी से लेकर हिंदी भाषियों तक हम ला पाए हैं। पर एक छोटा सा किस्सा ज़रूर है और मैं आप सबकी तवक्को चाहूँगा। आज हम जहाँ पहुँचे हैं गौहर जान को लेकर, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। 2009 में विक्रम ने सबसे पहले गौहर जान के बारे में जिक्र किया मेरे से, और जब वो गौहर की खोज के लिए दिल्ली आए तो मेरे ही घर ठहरे थे। उन्हें दिल्ली से आगे रामपुर जाना था, जहां वो गौहर के बारे में और खोजबीन करना चाहते थे। तो उस समय 2009 की बात है। विक्रम आई वुड लाइक योर अटेंशन फॉर जस्ट अ बिट। तो मुझे लगता है, क्योंकि कई लोगों ने पूछा कि ये अनुवाद कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो 2009 में जब आप घर आए, दिल्ली आए और हमने गौहर की बातें की, तो मुझे लगता है कि उसी समय इन्होंने शानदार और एक आकर्षक शख्सियत गौहर का जो बीज था वो मेरे पास कहीं छोड़ दिया था। ये ठीक वैसा ही था जैसे विक्रम को खुद गौहर के बारे में सबसे पहले मालूम हुआ जब वो मैसूर के राजभवन के लाइब्रेरी में गए अपनी दूसरी पुस्तक की खोज में, और उनकी नज़र गौहर पर पड़ गई और वो उसके दीवाने हो गए। विक्रम की बात सुनने के बाद मैं स्वयं इतिहास के इस पात्र की ओर आकर्षित रहा, और जब से ये अंग्रेज़ी पुस्तक आई तब से हम लोग ये सोचते रहे कि कैसे इसे हिंदी में अनुवाद किया जाए और इस हिंदी पाठकों तक लाया जाए। और मेरा सौभाग्य है कि सबकी मदद से ये काम हो पाया है। सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से को बड़ा आभार है, और अब वाणी प्रकाशन को भी आभार है कि वे इस पुस्तक को और आगे ले जा रहे हैं और ले जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक हिंदी पाठकों को ये पुस्तक मिल सके। अनुवाद की प्रक्रिया से हम लोग रोज़ गुजरते हैं और शायद इसका हमें आभास भी नहीं होता है। साहित्य की दृष्टि से हो, व्यापार में हो, शिक्षा में हो, हर क्षेत्र में संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए अनुवाद ही चाहिए। इंग्लिश में हम इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। सो टू ट्रांसलेट योर वर्ड, योर मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ वॉट वी आर डूइंग एवरी डे इन एवरी मीन्स, बाय एवरी मीन्स। और मैं मानता हूं कि अनुवाद के कारण हम मानव की एक आधारभूत, सार्वभौमिक, ऐतिहासिक और सामाजिक एकता को अनुभव कर सकते हैं। भाषाओं के बाहरी भेद के बावजूद हमारे जीवन के प्रत्येक कण की तह में जो निहित एकता है वो अनुवाद के माध्यम से हम सामने ला सकते हैं।
किसी ने कहा है कि अनुवाद मूल रचना का अनुकरण मात्र नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म है। तो इस पुस्तक के माध्यम से हमें लगता है कि हमने भी गौहर जान को पहले विक्रम ने अंग्रेजी में पुनर्जन्म दिया और हमने होपफुली हिंदी में उसको एक और जन्म दिया, जिससे वो और पाठकों तक पहुँचे। उम्मीद है कि ये यात्रा दूर तक जाएगी। और अब अंत में एक बात मेरे सह अनुवादक स्वर्गीय श्री अंशुमन पांडे जी के लिए। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा, इसकी परिकल्पना अंशुमन जी ने खुद की थी। वे चाहते थे ये कार्यक्रम जल्द से जल्द हो, और शायद ये पिछले वर्ष हो जाता यदि कोविड महामारी ने उन्हें हमसे छीन न लिया होता। तो अंशुमन जी से मेरा परिचय लगभग 25 वर्ष पुराना है। जैसा कि आपने सुना अभी, वे बहुत संवेदनशील, बड़े सौम्य सहज प्रकृति के व्यक्ति थे और चीज़ों की बारीक समझ रखते थे। कलाओं के प्रति उनका विशेष रुझान था और अपने अल्प जीवन में जो उन्होंने कला की सेवा और कलाकारों की सेवा की है, वो एक मिसाल से कम नहीं। जो वरिष्ठ कलाकार आज यहाँ सभा में मौजूद हैं, वे स्वीकारेंगे कि जो कलाकारों को जो वो सम्मान देते थे और उनके प्रति कितना समर्पित थे, ये वो सब जानते हैं। मालिनी जी के हम विशेष आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने वे, जैसा आपने सुना, अंशुमन जी के बहुत अति निकट थी। और इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश थी कि आपके करकमलों से ये पुस्तक सबके सामने आए। तो चाहे भारत रत्न पंडित रविशंकर हों या कोई भी एक नया उभरता कलाकार, अंशुमन जी ने उन्होंने व्यावसायिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया, मंच दिया, और कभी भी उसका श्रेय नहीं लिया। क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ था, जो उनको अपने पिताजी से विरासत में मिला था। तो उसी सिलसिले में जब हमने गौहर जान की हिंदी अनुवाद की बात की तो वो राज़ी हो गए, और हमें खुशी है कि विक्रम भी राज़ी हो गए, और फिर ये किताब बनकर सामने आई। खेद ये है कि इस पुस्तक को आते आते कुछ समय लग गया, पर संतोष इस बात का है कि हम इस काम को अंजाम दे सके। अंशुमन पांडे एक सच्चे मित्र थे, सबके अति प्रिय, एक दरिया दिल इंसान, जिसने सबकी मदद की, हाथ पकड़ पकड़ कर सबको सहायता दी जो भी उनके पास आया, और वे हमारी यादों में हमेशा बसे रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। It's now time for all of us to enjoy a musical evening with respected Malini Awasthi ji. It's my utmost pleasure to welcome Srimati Malini Awasthi ji once again. The stage, ma'am, is all yours. We have been waiting to treat our ears with a beautiful musical rendition. ये हमारे लिए तो 2 डिजिट्स में एक जान थे। बंगाली मार्केट में कॉफ़ी पीना साथ में, और अंशुमन जैन के लिए ज़ोरदार तालियां हों, क्योंकि जितनी निष्ठा और मन से आपने आज इसका विमोचन किया है, और साथ ही साथ विक्रम संपत जी को भी यहाँ पर आपने उपस्थित रखा है, जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और जो आज हो करके भी नहीं हम सबके बीच में, ऐसे अंशुमन के पूरे परिवार को भी आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत आभार आप सबका व्यक्त करना चाहती हूँ। जो बात मैं कह रही थी कि गौहर जान जी की रिकॉर्डिंग्स कुछ समय से कुछ उपलब्ध हैं, उनमें 1-2 चीज़ें ख़ास तौर पे बहुत मशहूर हैं। उनमें एक चीज़ गाने की मैं कोशिश करूँगी, लेकिन शुरुआत में बनारस घराने की एक ठुमरी से ही, चलती हुई ठुमरी से प्रारंभ कर रही हूँ।
देख के वही के आपसे आशीर्वाद लेकर बलम तोरे बलम तोरे बलम तोरे
रैन गई, रैन गई, रैन पहले के ज़माने में ठुमरी में, दादरा में शेर दोहे अता पढ़ने की रवायत थी, अब बहुत कम होती चली जा रही है। आज चूंकि गौहर जान जी पर था तो एक उनका बड़ा मशहूर दादरा जो मैंने वैसे कभी नहीं गाया, आज के लिए तैयार किया। आन बान जिया में लगी, 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 आन बान
परन लागू तुम्हारे पैया परन लागू तुम्हारे पैया परन लागू तुम्हारे पैया परन लागू तुम्हारे पैया तुम्हारा पान सैया तुम्हारा पान सैया तुम बिना मोरे करना पड़त तुम बिना मोरे करना पड़त तुमरे कारण जा आन बान जिया में लागे आन बान जिया में लागे पहला और अभी का अंदाज हम लोगों ने गुरु से जिनसे सीखा है, आदरणीय अप्पा जी, उनका काम ही सिर्फ रहा कि शब्द को समझ के वैसे ही बरतना है, सुर भी वैसे ही जाएं जैसे बड़े गुरुजनों ने धुनें बनाई हैं उनके हिसाब से। और पहले का जो चलन है, चूंकि इतनी एक विस्तार की चीज को समेटना होता था, तो एक जल्दी भी रहती थी और दूसरी ताने, क्योंकि राग का पूरा स्वरूप दिखाना होता था, तो पूरी बंदिश कहने के बाद दो ताने ले करके आन बान जिया मेरा होगी आन बान जिया आन बान जिया में लागी आन माय नेम इज गौहर चांद। ये मैंने चूंकि आपके सामने गा रही थी तो सुन करके पुराना YouTube की चीज़ एक निकाली। एक भैरवी से मुझे लगता है, वैसे उन्होंने रस के भरे तो नैन भी गाया है बहुत कमाल। मुझे लगता है बाबुल मोरा भी साथ में दिगाएं तो अंशुमन के लिए मुझे लगता है एक श्रद्धांजलि भी हो जाएगी। और भैरवी से गौहर जान जी पर था तो एक उनका बड़ा मशहूर दादरा जो मैंने वैसे कभी नहीं गाया, आज के लिए तैयार किया।
पड़न लागो तुम्हारे पैया पड़न लागो तुम्हारे पैया पड़न लागो तुम्हारे पैया पड़न लागो तुम्हारे पैया तुम्हारा पान सैया तुम्हारा पान सैया तुम बिना मोरे करना पड़त तुम बिना मोरे करना पड़त तुमरे कारण जा बान जिया में लागे बान जिया में लागे पहला और अभी का अंदाज हम लोगों ने गुरु से जिनसे सीखा है, आदरणीय अप्पा जी, उनका काम ही सिर्फ रहा कि शब्द को समझ के वैसे ही बरतना है, सुर भी वैसे ही जाएं जैसे बड़े गुरुजनों ने धुनें बनाई हैं उनके हिसाब से। और पहले का जो चलन है, चूंकि इतनी एक विस्तार की चीज़ को समेटना होता था तो एक जल्दी भी रहती थी, और दूसरी ताने, क्योंकि राग का पूरा स्वरूप दिखाना होता था तो पूरी बंदिश कहने के बाद 2 ताने ले करके आन बान जिया में लागी आन बान जिया आन बान जिया में लागी आन माय नेम इज गौहर चांद। ये मैंने चूंकि आपके सामने गा रही थी तो सुन करके पुराना YouTube की चीज़ एक निकाली। एक भैरवी से मुझे लगता है वैसे उन्होंने रस के भरे तोरे नैन भी गाया है बहुत कमाल। मुझे लगता है बाबुल मोरा भी साथ में यदि गाएं तो अंशुमन के लिए मुझे लगता है एक श्रद्धांजलि भी हो जाएगी। और भैरवी से अब कुछ कहियो न जाए
थैंक यू। आप विक्रम अभी यंग हैं और बहुत आपके पास अभी लिखने का जीवन बचा हुआ है, और जिस तरह की इंसाइट आपकी है रिसर्च ओरिएंटेड, वो आपने सावरकर पे लिखा तो भी रिसर्च बन गई ऑथेंटिक, और म्यूज़िक पे लिखा तो अब कमाल है। लेकिन मैं कहूँगी सब विषयों पे लिखने वाले बहुत हैं, म्यूज़िक पे इस तरह का सरदार लिखने वाले, ऐसे ऐसे लोगों की ज़िंदगी को सामने लाए जाने की ज़रूरत है। हम आज संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ज़मीन जिन्होंने तैयार की है और हिम्मत दी, हम सोच सकते हैं कि आज हम लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं, पहले कैसे गुजरे होंगे, किस हालात से। सो थैंक यू सो मच। दैट बुक वॉज इन फैक्ट अ लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, जस्ट गोइंग थ्रू दैट बुक, एंड आई एम सो हैप्पी कि हिंदी में इसका अनुवाद आया है एंड इट विल रीच अ वाइडर ऑडियंस। थैंक यू सो मच अंशुमान, एंड थैंक यू सो मच दीपक ये सब आयोजित करने के लिए, और अंशुमन जहाँ भी हैं प्रणाम करती हूँ। Thank you so much, Malini ji. That was truly a mesmerizing musical rendition. I now call Ms. Aradhana Pradhan, SAS woman of NCR, to give the vote of thanks. गौहर जान की किताब के विमोचन में उनको शब्दों के साथ साथ संगीत के थ्रू माध्यम से भी याद किया जाए, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। बहुत आभार मालिनी जी आपका। पंडित धर्मनाथ मिश्रा जी हारमोनियम पर आपका बहुत आभार। पंडित राम कुमार मिश्रा जी तबले पे बहुत बहुत आभार। उस्ताद मुराद अली जी सारंगी पे आपका बहुत बहुत आभार। And on behalf of the Prabha Khetan Foundation, I, Aradhana Pradhan, SAS woman of NCR, would like to express my sincere gratitude to author Dr. Vikram Sampath ji and the most distinguished and respected chief guest Dr. Sonal Mansingh ji, Pandit Sajan Mishra ji and Srimati Malini Awasthi ji for launching Hindi translation of Dr. Vikram Sampath's book, My Name is Gauhar Jaan. What a wonderful session it was under the joint initiative of Foundation Kitab and Sur Aur Saaj. A wonderful panel discussion with most notable personalities with my fellow SAS woman, Ms. Shinjani Kulkarni, followed by a mesmerizing performance by none other than Srimati Malini Awasthi ji. It was a truly an evening to remember. I would also like to thank our presenter, Shri Cement Limited and Bharatiya Gyanpeeth, a notable literary and research organization based in New Delhi, for facilitating Hindi translation of Dr. Sampath's highly acclaimed book. Last but not the least, a big round of applause for most amazing and receptive audience. Without your presence and support, this star-studded evening would not have been successful and enjoyable. Until the next evening, next event, thank you very much and good night.